Welcome, students. RN Classes is back with a discussion of another school paper. Today, for class 9th, St. Anne's Convent School, Chandigarh conducted their annual examination on mathematics subject for the session 2022-23. Let's straight away dive into the subject. Section A, 20 questions, 1 mark each. For the very first question, 54 by 250 raised to the power 1 by 3. सबसे पहले तो इसको simplest form में लिखते हैं. So this goes out to 27 and this goes out to 125. अब power 1 by 3 है. 27 को मैं लिख सकता हूं 3 and 125 को मैं लिख सकता हूं 5. इनकी पावर 3, उसकी पावर 1 by 3. पावर की पावर means 3 by 5 raised to the power 3 into 1 by 3. Multiply हो जाएंगी powers. Answer is 3 by 5 and you know which one to pick. B part is the right choice. The value of k for which this polynomial has 3 as its 0. अब ये polynomial है मेरे पास. Of course, p of x is given to me. That is x cube minus 3x square plus 3x plus k. Now, 3 is the 0 of the polynomial. मतलब कि p of 3 will be equal to 0. So, 3 का cube 7 minus 3 into 3 square लिखना पड़ेगा. 9 लिख देते हैं सीधा. 3 3 9 यहाँ पे आ जाएगा plus k which goes to 0. So, यहाँ पे 27, यहाँ पे minus 27. This is 3 3s and 9 plus k is equal to 0. Of course, this gets cancelled. K key value minus 9. Yeah, that's the answer. C part. Next one. Which of the following point does not lie on this line? Does not बोला है, guys. Do not. Let's go with the first one. Y मैं बना लूंगा. x की वैल्यू मैं 1 डालता हूं. So 3 plus 4, y should be 7. So 7 आ रहा है. Of course. So this point lies on the line. So ये तो आंसर नहीं हो सकता. 2, 10. So y, अब 3 2s are 6 plus 4. y कितना बन गया? 10. मैंने x2 डाला, y 10 आ गया. Of course this lies on the point. Lie on the line, so this cannot be the answer. Minus 1 comma minus 1. So y is equal to, so x की जगह minus 1 रखा तो minus 3 plus 4. y goes out to 1. यहां पे कह रहा है कि y minus 1 होना चाहिए. Of course, minus 1 comma 1 does not lie on the line. So C is the right choice to choose from. But हम D भी देख लेते हैं. अगर किसी को ये नहीं भी मिला, D को देख लेते हैं. y is equal to x की जगह मैंने 4 रखना है. 4 3s are 12 plus 4. y should be equal to 16. Of course, this also doesn't lie on the line. So C or D both are correct. जो already mark करवा दिया था स्कूल में, so that you can make an informed decision. Question number 4. अब 0.9 बार को p by q फॉर्म में लिखना है. So that is very simple. X is equal to 0.9 gets repeated infinite number of times. So of course I'll multiply with 10. 10x is equal to 9.999 and so on. So x is equal to 0.999 and so on. Of course we'll subtract it. So this goes out to 9x, and when I'll subtract this, this goes out to 9x is equal to 1. So this is the part. Simple, simple, straightforward. Question number 5. Root 2 is a polynomial. Of course, root 2 is a polynomial. इसकी डिग्री क्या होगी? Okay, root 2 के साथ वेरिएबल छुपा हुआ है. कौन सा वेरिएबल? मेरा एक वेरिएबल x. छुपा हुआ है ये वेरिएबल. उसकी पावर क्या होगी? 0. क्योंकि x रेज पर 0 is 1. वेरिएबल की पावर 0 is
1, सो √2 इंटू 1 √2 ही रहेगा, मतलब कि जो मैंने एज्यूम किया है एब्सोल्युटली करेक्ट है, सो बी इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट -5, 2 and 2, -5 lie in। मैं पॉइंट्स को बना के ही देख लेता हूं कहां पे हैं पॉइंट्स। लेट्स सी, दिस इज x, दिस इज y, सो -5 and 2 somewhere here, so of course this lies in second quadrant, 2 positive, -5 somewhere here, 2 comma -5, of course this lies in the fourth quadrant, both lie in the same quadrant, of course not, second quadrant which is absolutely correct, third quadrant respectively बोला, of course not, ये तो lie नहीं करता actually, तो 2 and fourth मतलब कि second quadrant and fourth quadrant respectively बोला, बिल्कुल ठीक, C is the right choice। अगर आप D को भी देखो, 4 and 2 quadrants are absolutely correct, but respectively बोला है, so this lies in the fourth quadrant, absolutely not, so C is the right choice to choose from। Question number 7, x is equal to 2, y is equal to 1 is a solution of this equation। भाई solution of this equation का क्या मतलब बनता है? इसका मतलब है कि मैं x की जगह 2 डालूं, y की जगह 1 डालूं, it should satisfy the equation। Of course I can get the value of k in that way, so 2 x की जगह 2 रखा plus 3 y की जगह 1 रखा is equal to, so 4 plus 3, so this is 7, of course B part is the right choice। Question number 8, the graph of the linear equation this cuts the y-axis at a point, okay, ये रही मेरी coordinate axis। Now मेरे को अभी ये बनाने की जरूरत नहीं है, लाई कुछ भाई लाइन कुछ ऐसे ही लाई करेगी, आई डोंट नो वेयर, बट ऐसे ही कुछ लाई करेगी, राइट, इट वुड कट एक्स एक्सिस एट सम पॉइंट, आई डोंट नो विच पॉइंट, कौन से पॉइंट पे वही तो निकालना है, कट्स एक्स एक्सिस, बट यार इसके कोऑर्डिनेट में मेरे को एक्स कोऑर्डिनेट तो नहीं पता, बट आई एम श्योर अबाउट द वाई कोऑर्डिनेट विच इज गोइंग टू बी 0, सो वाई की जगह 0 पुट करके देख लेते हैं यहां पे, सो 3x plus 0 is equal to 6, so 3x is equal to 6, x is equal to 2, मेरे पास तो पॉइंट ही आ गया यार, 2,0, ओह सबसे पहला ही आंसर था, आंसर इज ए पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9, रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3, रैशनल नंबर बोला 2 and 3 के बीच में, ओके, 2.01, 001, 000, यार ये रैशनल नंबर है, ये तो इरैशनल नंबर है, ये तो हो ही नहीं सकता, रूट से इरैशनल नंबर हो ही नहीं सकता, 5/2, of course this is 2.5 lies between 2 and 3, it is a rational number, C is the right choice, और ये तो वैसे ही रैशनल नंबर है, ये भी नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 10, प्रोडक्ट ऑफ any two irrational number is always an irrational number, always a rational number, always an integer, sometimes rational, sometimes irrational, we don't know, right, so irrational number, दो irrational number लिए उनका प्रोडक्ट करना है, मेरी चॉइस है, मैं काम करता हूं, एक irrational नंबर लेता हूं √3, दूसरा irrational नंबर लेता हूं √2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, ऑफ कोर्स वी नो इट इज गोइंग टू बी √6, अब बोलो क्या ये रैशनल है इरैशनल है, ऑफ कोर्स दिस इज एन इरैशनल, बट यहां पे देख के हम आंसर नहीं कर सकते, फिर तो आप ए मार्क कर देते, विच इज नॉट करेक्ट, मेरी चॉइस है ना, दो नंबर्स चूज करने, I'll take one as √5 and another one as 2√5, दोनों को मल्टीप्लाई कर रहा हूं, क्या आएगा 10, अब बोलो क्या ये इरैशनल है, नो दिस इज अ रैशनल नंबर, अब बोलो यार कभी रैशनल आता है कभी रैशनल आता है, समटाइम्स rational, sometimes irrational, D is the right choice। PQRS is a parallelogram, angle P minus angle R is, okay, PQRS is a parallelogram, बना के देख लेते हैं, this is a parallelogram PQR and S, angle P और angle R के बारे में बात करी, angle P and R ये दोनों तो इक्वल होंगे, let angle P is X,
एंगल आर क्या होगा, एक्स। सो पी माइनस आर, पी को एक्स रखा, आर को भी एक्स रखा, दोनों को माइनस करोगे यार आंसर तो जीरो आएगा। डी इज द राइट चॉइस। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड था। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? एक्स तो ये रहा। इन विच ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं ये एंगल तो बता ही सकता हूं, डबल होगा। आई नो दिस पॉइंट। सो ये एंगल होगा 80 डिग्री। दिस इज रेडियस, राइट? दिस इज ऑल्सो रेडियस। सो मतलब कि ट्राइंगल बीओसी क्या बन जाएगी, आइसोसेलीज। आइसोसेलीज बन गई, मतलब कि ये एंगल भी क्या हो गया, एक्स। Course I'll apply angle sum property 2x plus 80 which is going to be 180. 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100. So x की वैल्यू, चलो, x is 50 degree. A is the right choice. Question number 30. Length of each side of an equilateral triangle of area this. Each side, let that side be A. और उसने बता दिया एरिया ये है, साइड निकालनी है। एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल सबको पता है क्या होता है, √3/4 स्क्वायर। एंड वो कह रहा है कि एरिया क्या होगा, 4√3। सो लेट्स डू इट। ये तो कैंसिल हो गया। ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16। ऑफ कोर्स ए इज गोइंग टू बी 4 सेंटीमीटर्स। फर्स्ट ए पार्ट इज द राइट चॉइस। क्वेश्चन नंबर 14. Graph of a linear equation x equal to y passes through which point? 3, यार x एंड y दोनों इक्वल नहीं होने चाहिए। x की वैल्यू 1 डालो, दूसरा 1, x की वैल्यू 100 डालो, y भी 100, दोनों इक्वल होने चाहिए। यहां पे इक्वल तो है ही नहीं, यहां पे भी इक्वल नहीं है, यहां पे इक्वल है। ऑफ कोर्स दिस इज टू, यहां पे भी इक्वल नहीं है। सी इज द राइट चॉइस। कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, ऐसा सोचना ही था देख के। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 15. If the slant height of cone is 17 centimeter and the base radius is 8, then height of the cone is, okay, पहले cone बना लेते हैं. Let's see. This is my cone. Now, slant height is given as 17. Okay. This is radius, which is given to be 8. I need the height of the cone. I know this is going to be 90 degree. So this is slant height. So Pythagoras theorem, L square is equal to R square plus H square. So 17 square, 8 square plus H square. This is 289. This is 64 plus square. So H square is equal to 225. H is equal to 15 centimeters, of course. So 15. A part is the right choice. Next, question number 16. The number this is natural number है, whole number है, rational number है, irrational number है. Okay, let's see. 10, फिर आया 100, फिर आया 1000, फिर आया 10,000. ये तो बढ़ते जा रहे हैं यार. This is an irrational number. B part. बिल्कुल देखा ध्यान से, हर एक ऑप्शन को पाक कर दिया. अब ABCD is a parallelogram. Let's make the parallelogram. A, B, C, D. अब C की वैल्यू मुझे 65 डिग्री. Now I need to find B and I need to find D. Of course I know opposite angles equal होते हैं. इसको मैं X ले लेता हूं. ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं और CD को मैं BC को एज अ ट्रांसवर्सल ले लेता हूं. Of course X plus 65 is going to give me 180. Angles on the same side of the transversal, their sum is 180. So X is equal to 115. ये मेरे पास 115 आ गया. So D कितना होगा, 115. भाई ये 115, ये भी 115, टोटल कितना हो गया, 230 डिग्रीज. D part दिख गया सीधा. Next one, in the given figure, PQ is parallel to RS. Okay, ये पैरेलल दिया हुआ है मुझे. वैल्यू ऑफ ME तो चाहिए.
ये एंगल आ जाए, माई प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। पैरेलल लाइंस का यूज करो, ये एंगल कितना है 56। कोर्स अगर ये एंगल 56 कैसे निकला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, सो m plus 14 plus 56 is going to give me 180। क्या लगाया, सम प्रॉपर्टी, सो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 110 डिग्रीज। ए पार्ट इज द राइट चॉइस। नेक्स्ट, अब assertion रीजन आ गए भाई, इंपॉर्टेंट, ध्यान से चूज करना। Three angles of a quadrilateral 75, 90, 75, then the fourth angle is 120. I have to check it out. So 75 plus 90 plus 75, and let the last one be x. I'm using angle sum property of a quadrilateral which is 360. Of course, this is 150, 90 is 240 plus x is equal to 360. So x की value 120, उसने क्या बोला 120, मतलब कि स्टेटमेंट इज ट्रू। वंडरफुल। सम ऑफ एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 1, भाई ट्रायंगल थोड़ा ना है, क्वाड्रिलेटरल बोला है, ये कितना होना चाहिए 360 होना चाहिए था, तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ऑफ कोर्स आई नो, सो आंसर वुड बी सी पार्ट। क्यों, assertion is true, reason is false। read this carefully guys। next one, अब वो कह रहा है assertion reason में एक ट्रायंगल एबीसी है, ओके, दिस इज अ ट्रायंगल एबीसी, लेट्स मार्क इट। एक और ट्राइंगल है DEF, बिल्कुल ले लिया DEF भी ले लिया। अब वो कह रहा है AB FD के बराबर है, वंडरफुल, ये साइड इस साइड के बराबर है, एंगल A एंगल D के बराबर है, एक्सलेंट, ये भी मिल गया मुझे। AC DF के बराबर, C के ही बराबर कर दिया फिर से। देन वो कह रहा है कि ये एक भाई कॉन्ग्रुएंट है, कैसे, AB TF के बराबर है, AC FD के बराबर। व्हाट इज दिस, द स्टेटमेंट इज फॉल्स। Three sides of one triangle are equal to three sides of another triangle, then the triangles are congruent. The statement is true. Assertion is false, reason is true. D part is the right choice. अगर आप ये ध्यान से पढ़ोगे, एक क्वेश्चन तो हो ही नहीं सकता गलत। सेक्शन बी पे चलते हैं, 2 markers. Moving on to section B. Now, each question consists of 2 marks. 5 questions means 10 marks can be in your bag. Up, simplify. 81 की पावर 1 by 4 minus 8, 216 की पावर 1 by 3 plus 15, 32 की पावर 1 by 4 and 225 की पावर 1 by 2. So, मैं 81 को बिल्कुल सिंपल लिख सकता हूं, 3 की पावर 4 की पावर 1 by 4 minus 8, 6 का क्यूब raised to the power 1 by 3, दिख रही थी ये चीजें तो, 15 into, of course, 2 की power 5 की power 1 by 5 plus 225 means 15 का square की power 1 by 2. अब मेरे को कोई लॉ तो लगाना पड़ेगा, of course it is a subjective question means I have to write the law. A raised to the power m raised to the power n का यूज करूंगा मैं, A raised to the power m into n. This is the law which I am going to use. So 3 की power 4 into 1 by 4. Of course, this will get cancelled. Minus 8 into 6 की power 3 की power 1 by 3. They gets multiplied. Plus 15 into 2 power 5 raised power 1 by 5. This gets cancelled. Plus 15 2 into 1 by 2. This gets cancelled. So this comes out to be 3 minus 8 into 6, 48 plus 15 into 2, that is 30 plus 15, which comes out to be 0. See, such a simple one. Oh, इसका एक और पार्ट भी था, अगर आपको वो वाला पसंद नहीं था, ये वाला कर लो। अब 2 की पावर 5x divided by 2 की पावर x in is equal to 5th root of 2 की पावर 20. So, इसके अंदर तो बिल्कुल सिंपल है, a raised to the power m divided by a raised to the power n. Bases are same, powers will get subtracted. I will use this one first. So 2 की power 5x minus x and 2 की power 20 raised to the power 1 by 5.
Again, I'm going to use this one, a raised to the power m raised to the power n, which is equal to a raised to the power m into n. अगर आप ये लॉज नहीं लिखोगे, आप फॉर्मूला नहीं लिखोगे, मार्क्स कट सकते हैं. 2 की पावर 4x is equal to 2 की पावर 20 into 1 by 5. 5 4s are 20. So 2 की पावर, not 20 नहीं है, ये 2 है. 2 की पावर 4x is equal to 2 की पावर 4. So 4x is equal to 4. Bases were same. बीच में इक्वालिटी थी, तो power has to be same, right? So x is equal to final answer. Next one. Write the coordinates of point A, B, C and D. A. Points लिखना था 4, 0. B. 0, 3. C. -5, 0. And D. 0, -4. Hardly took me a second. Don't waste your time unnecessarily. भाई क्वेश्चन इजी भी तो हो सकता है आपके लिए. Write 2 axioms of Euclid. So any 2 axioms. I'm going to give you the most easiest ones. I'm not going to write it, of course. आपको आते हैं already. Axiom number 1. Things which are equal to the same thing are equal to one another. 1 mark in your bag. Axiom number 2. Another easy one. If equals are added to equal, then wholes are equal. लिख दो, एक नंबर और ले लो. और भी इजी. इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिमाइंडर्स आर इक्वल. वो पूछे थे, 3 याद थे, लिखने दो ही है भाई. 3 मत लिख देना, ठीक है? कहीं उसमें कोई ग्रामेटिकल मिस्टेक, आधा नंबर काट लिया. सो बी केयरफुल अबाउट इट गाइस. नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 24. AC is equal to BD, right? So prove that AB is equal to CD. So मेरे को दिया हुआ है AC is equal to BD, ठीक है? So मैं क्या करूं? AC, यार ये BC ना दोनों में है. मैं काम करता हूं, AC में से BC को सब्ट्रैक्ट करता हूं और BD में से भी BC को सब्ट्रैक्ट करता हूं. अब देखो, AC इस टोटल में से BC वाले पार्ट को सब्ट्रैक्ट किया, क्या आया? AB. और मेरे पास BD इस वाले पार्ट में से BC को सब्ट्रैक्ट किया, ऑफ कोर्स मेरे पास क्या आया? CD. इसका एक नंबर था. और ऑफ कोर्स स्टेटमेंट लिखने का, इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, रिमाइंडर्स आर. ये लिखना जरूरी था टू गेट फुल 2 मार्क्स. क्वेश्चन नंबर 25. अ ग्लास हेमिस्फेरिकल बोल, रेडियस दिया हुआ है. हाउ मेनी लीटर्स, लीटर्स में आंसर होना चाहिए, देन ओनली यू विल गेट 2 मार्क्स. कैन इट होल्ड? हेमिस्फेरिकल बोल की बात करिए, लीटर्स मतलब कि वॉल्यूम की बात करिए. सो इसका रेडियस मेरे पास था 9 सेंटीमीटर्स, राइट? सो वॉल्यूम क्या होता है भाई हेमिस्फीयर का? बाय 3 पाई आर क्यू, राइट? सो ये आया 2/3. पाई इज 22/7. रेडियस इज 9 into 9 to 9, राइट? ये आंसर आया मेरे पास सेंटीमीटर. यहां पे 3 3s are 9. मेरे को आंसर लीटर्स में चाहिए. यहां पे सॉल्विंग मत करो, उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में आंसर मांगा नहीं. सो व्हाट एल्स आई नो भाई, सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? ऑफ कोर्स आई नो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब. सो फुल सिंपल है, 1/1000 लीटर्स इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर. यूनिटरी मेथड का यूज करेंगे. आई विल यूज दिस डायरेक्टली ओवर हियर. 2 into 22 into 3 into 9 into 9 by 7 into 1000 in the denominator. अब ये चेंज हो चुका है लीटर्स में. कोर्स यू हैव टू फाइंड इट आउट. मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर आएगा 1.5274. 2 डेसिमल प्लेसेस तक इज एब्सोल्युटली. अब सी सेक्शन पे चलते हैं. 3 मार्क्स. कहीं और वाला पार्ट तो नहीं बचा? ओ नहीं, और वाला पार्ट बचा है. और वाला करेंगे यार. अगर वो वाला नहीं पसंद तो ये वाला कर लो. देखते हैं. चार्वी took a spherical orange, स्फीयर की बात करी है उसने, and puts a thread around its boundary in the middle. Okay.
she noted that the length of the thread was 22 centimeters. What is the diameter of the orange? Right? So, spherical orange की बात करिए. ये स्फीयर आया मेरे पास. अब उसने थ्रेड तो बांधी, इन द मिडिल बांधी. ओके, सो ये रहा सेंटर, तो उसने थ्रेड कुछ ऐसे बांधी होगी. राइट? ये 3D है, ये यहां पे ऐसा सा दिख रहा होगा आपको. ये थ्रेड बांधी मिडिल में. ठीक है. सो एक्चुअली अगर आप मिडिल में देखो तो ये क्या बन रहा है? एक सर्कल ही तो बन रहा है. थ्रेड सर्कुलर इन शेप होगी. थ्रेड की लेंथ दे दी, फिर से डायमीटर पूछ लिया. यार सर्कल का क्या बन गया मेरे पास? सर्कमफ्रेंस. सर्कमफ्रेंस तो मेरे को पता है 2πr होती है, which is equal to, which is already given as 22. So 2 into 22 by 7 into r is equal to 22. अब मेरे ख्याल से तो यही दिख जाना चाहिए था. आपसे r पूछा था? नहीं. आपसे तो डायमीटर पूछा था, तो 2r की वैल्यू डायरेक्ट तो मिल रही थी यहां से. 2r है कितना? 2r is equal to 7. Means 2r means twice the radius is diameter, which is 7 centimeters. लो, इतना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड. अब चलते हैं सेक्शन सी पे 3 मार्क्स लेने. सेक्शन सी. In section C, there are 6 questions, each carrying 3 marks. So 18 marks can be in your bag if you do it correctly. Let's read it. Draw the graph of this equation. Write the coordinates of the points where the line intersect x-axis and y-axis. So, how many points do you need to make a line? We need 2 points. वो दोनों points ले लेते हैं. So, मेरे पास है 4x plus 3y is equal to 12. Right? अब x and y choose करने हैं मैंने. Right? So, for the very first one, I'll take y as 0. If y is 0, then 4x is equal to 12. Then x would be equal to 3. Y is 0, x is 3. Now, for the next one, put x as 0. Easiest ones, बहुत जल्दी आंसर आएगा. x को 0 पुट कर दिया. So 3y becomes 12. So y is equal to 4. x को 0, y को 4. मेरे को पॉइंट्स भी मिल गए जहां पे इंटरसेक्ट करता है. एंड मैं सीधा पोर्ट्रे भी कर देता हूं. कुछ बारी स्कूल में आपको बोलता है कि नहीं थर्ड पॉइंट भी लेना है, जस्ट टेक एनी ऑफ द पॉइंट्स. 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, राइट. सो अब हम बना देते हैं. So this is my coordinate plane. This is x-axis. This is y-axis. 1, 2, 3. 1, 2, 3, and 4. So 4, 3, 2, 1. Right? So अब 0, 4 is here and 3, 0 is here. इनको join करना है. You have to mark these 0, 4 and 3, 0. That's it. X-axis, Y-axis marked hai. You get full 3 marks over here. But ये graph paper पे बनाना है. ध्यान से. If both A and B are rational numbers, find the value of A and B. Okay. So, मेरे पास question है 5 plus 2 root 3 by 7 plus 4 root 3, which is equal to a plus b root 3. अब बताओ a plus b root 3, क्या इसके डिनोमिनेटर में कोई भी नंबर है? नो. सो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू रैशनलाइज. वेरी सिंपल. 5 plus 2 root 3 वैसे का वैसे ही है. नीचे मेरे पास नंबर है 7 plus 4 root 3. राइट. सो डिनोमिनेटर में मैं किससे मल्टीप्लाई करूं? 7 minus 4 root 3. सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं कर सकता. We have to multiply in the numerator as well. This is called rationalization. So this is equal to a plus b 3. So अब न्यूमरेटर में तो मैं सिर्फ मल्टीप्लिकेशन करूंगा. तो 5 को पहले इस पूरे से मल्टीप्लाई किया. So 5 into 7 minus 4 root 3 plus 2 root 3, 7 minus 4 root 3.
डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 7 स्क्वायर माइनस 4√3 का स्क्वायर, विच इज नथिंग इक्वल टू a प्लस b√3। सो अब 5 को डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा के मल्टीप्लाई, 5 7 35 माइनस 20√3 प्लस 14√3 माइनस 4 2 8 तो हुआ ही हुआ, इंटू 3 भी हुआ, 8 3 24 बाय 49 minus 48 which is nothing but a plus b√3। राइट हैंड साइड सेम ही रहेगा, कंपैरिजन अभी करेंगे। 35 minus 24 will give you 11 and minus 20√3 plus 14√3 will give you minus 6√3 which is equal to a plus b√3। so यहां पे मेरे को प्लस डेवलप करना पड़ेगा so that I can compare a is equal to 11, b is equal to minus 6। 3 marks, yours। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड वन। अब ट्री का क्वेश्चन है, लेट्स डू इट। इफ द डायगोनल्स ऑफ द पैरेललोग्राम आर इक्वल देन शो दैट इट इज अ रेक्टेंगल। मैं पहले पैरेललोग्राम बना ही लेता हूं। ये रहा मेरे पास पैरेललोग्राम। उसने बोला कि ये डायगोनल और ये डायगोनल, मतलब कि ए बी सी डी में उसने कुछ दे दिया मुझे। मुझे क्या दिया, ए सी इज इक्वल टू बी डी, दिस इज गिवन एंड देन शो दैट ए बी सी डी क्या बन जाए, रेक्टेंगल। ये क्या है, ठीक है। पैरेललोग्राम से हम रेक्टेंगल कैसे बनाते हैं भाई, एक एंगल को मैं 90 डिग्री प्रूव कर दूं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व। मैं एक काम करता हूं, ए को 90 डिग्री प्रूव करने की कोशिश करते हैं। सो ए कौन सी ट्राइंगल का पार्ट है, ट्राइंगल एबीडी, ठीक है। अगर एबीडी लिया है तो बी ए सी लेना पड़ेगा दूसरी ट्राइंगल को। व्हाट डू वी नो इन दिस, एडी इज इक्वल टू बीसी, क्यों, साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, साइड्स नहीं, ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, लिखना पड़ेगा पूरा। ए बी दोनों साइड पे कॉमन है, ठीक है। व्हाट एल्स, मेरे को तो ऑलरेडी पता है बी डी इज इक्वल टू ए सी, ये तो गिवन था। आई कैन इजिली से ट्राइंगल एबीडी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बीएसी। ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगी, कॉन्ग्रुएंट। कौन सा रूल लगा दिया मैंने यहां पे, एस एस एस, रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब जैसे ये लगा, आई कैन से एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी थ्रू सीपीसीटी। दिस आई नो, दिस आई यूज। अब एंगल ए और एंगल बी दोनों इक्वल हो गए। मेरे को क्या पता है, एबीसीडी इज पैरेललोग्राम, पता है, यस। सो अगर एबीसीडी पैरेललोग्राम है तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज सप्लीमेंट्री। एडजेसेंट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, उनका सम इज 180। अब आई ऑलरेडी नो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, आई विल राइट एंगल बी एज एंगल ए। So 2 times angle A will be equal to 180. So angle A will be equal to 90 degree. That's it. अगर एंगल A 90 हो गया, ABCD क्या बन गया, रेक्टेंगल। पैरेललोग्राम में एक भी एंगल 90, काम खत्म, इट बिकम्स अ रेक्टेंगल। इसका एक और पार्ट भी था, ABCD इज अ रेक्टेंगल। ओके, रेक्टेंगल दिया हुआ है, अब ओके बना लेते हैं। एबीसीडी मुझे एक रेक्टेंगल दिया हुआ है ऑलरेडी, राइट। ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, राइट। अब मुझे यहां पे मिला P, यहां पे मिला मुझे Q, यहां पे मिला मुझे R एंड यहां पे मिला मुझे S।
राइट। अब उसने क्या कहा कि पी क्यू आर एस आर मिड पॉइंट्स, वंडरफुल, ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड डी ए रिस्पेक्टिवली, शो दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। ओके, मैं पी क्यू आर एस को ज्वाइन कर देता हूं। अब मेरे को प्रूव करना है पी क्यू आर एस रोम्बस बन जाए। सबसे पहले तो मुझे यह प्रूव करना पड़ेगा कि पी क्यू आर एस, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम बन जाए, विच इज इजियर। अगर मैंने वो कर दिया, फिर सेकेंड पार्ट में मैं एडजेसेंट साइड्स को इक्वल कर दूंगा। ये चीज स्टार्ट करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन तो आप सॉल्व कर लोगे, क्या ये सोच पाते हो या नहीं, एडजेसेंट साइड्स इक्वल, राइट। सो अब मेरे को पीक्यूआरएस को पैरेललोग्राम प्रूव करना है। मिड पॉइंट्स दिए हैं, विल यूज मिड पॉइंट थ्योरम। सबसे पहले ट्राइंगल पे नजर डालो, ट्राइंगल एबीसी दिख रही है सबको, ट्राइंगल ये देखो, ए बी सी, ट्राइंगल एबीसी, मैंने डार्क भी कर दिया। ट्राइंगल एबीसी के अंदर पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, ठीक है, ऑफ ए बी एंड बी सी। अब पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड बी सी, सो बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम मैं सीधा कह सकता हूं कि पी क्यू इज पैरेलल टू ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी। फर्स्ट स्टेप डन। अब ये तो एक ट्राइंगल हुई, मैं दूसरी साइड पे भी ले लेता हूं, ट्राइंगल एसीडी की तरफ नजर डालो, राइट। आर एंड एस भी मिड पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक है। सो मैं फिर से मिड पॉइंट थ्योरम लगा देता हूं। मैं अब थोड़ा सा शॉर्ट में लिख रहा हूं। सो मिड पॉइंट थ्योरम लगाई, मैं फिर से कह सकता हूं आर एस इज पैरेलल टू ए सी एंड आर एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को देखो, राइट। पी क्यू पैरेलल था एसी के एंड साथ में मेरे पास आर एस भी पैरेलल था एसी के। तो मैंने यहां से 1 एंड 2 का यूज किया और मैंने यहां से बोल दिया भाई पी क्यू जो है वो पैरेलल है किसके, आर एस के। उसके बाद पी क्यू हाफ था एसी का एंड आर एस भी इक्वल था हाफ ऑफ एसी पे, राइट। मैं यहां से सीधा कह सकता हूं पी क्यू इज इक्वल टू आर एस। अब पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस एंड पी क्यू इज इक्वल टू आर एस, वन साइड, one pair of opposite sides is parallel and equal. तो मैं सीधा कह सकता हूं पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम तो बन गया। मैं थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना है। अब मुझे पी क्यू आर एस पैरेललोग्राम तो मिल गया, अब मेरे को एडजेसेंट साइड्स को इक्वल प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब कि देखो पी क्यू मेरे पास है, अगर मैं पी एस को पी क्यू के बराबर कर दूं, माय प्रॉब्लम इज सॉर्टेड। मैं इसको, ये देखो, इस वाली को इसके इक्वल प्रूफ कर दूं, मेरी प्रॉब्लम सॉल्व है। ओके, मैं एक काम करता हूं, एबीडी के अंदर भी मैं मिड पॉइंट थ्योरम तो लगा ही सकता हूं। लेट्स चेक इट। ट्राइंगल एबीडी, ठीक है, ट्राइंगल एबीडी में ध्यान दो, पी एंड एस आर मिड पॉइंट्स। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं फिर से, मिड पॉइंट्स दिए हैं बाय मिड पॉइंट थ्योरम। मैं क्या कह सकता हूं बाय मिड पॉइंट थ्योरम, सॉरी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम मैं कह सकता हूं पी एस इज पैरेलल टू बीडी। इसकी उतनी जरूरत नहीं है, बट ऑफ कोर्स मिड पॉइंट थ्योरम का पार्ट है तो मेरे को लिखना पड़ेगा। एंड पी एस इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, इसका यूज करेंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन 1
एंड इक्वेशन 3 के अंदर मैं इसका यूज करना चाहता हूं, इक्वालिटी का। सो मेरे को यहां पे बोल दिया पी क्यू इज हाफ ऑफ AC। ओके, एंड साथ में मुझे क्या दे दिया, PS इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD। ये मुझे दे दिया। मुझे एक चीज पता है, AC इज इक्वल टू BD। क्यों? डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल, डायगनल्स ऑफ रेक्टेंगल बन गया। तो मतलब कि मैं सीधा यहां से लिख सकता हूं PQ इज इक्वल टू PS। अब मैंने यहां पे सीधा लिखा adjacent sides of parallelogram are equal, PQRS becomes cross। फर्स्ट पार्ट वाज इजियर। फर्स्ट पार्ट वाला, ये वाला क्वेश्चन जो था ये फास्टर था, आपको ये करना चाहिए था। बट अगर किसी ने ये भी अटेम्प्ट किया है और वाला पार्ट, इट इज एब्सोल्युटली करेक्ट, योर विश, बट ये भी उतना मुश्किल नहीं था। 3 marks yours। नेक्स्ट, ड्रॉ द हिस्टोग्राम फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यार देखो, हिस्टोग्राम बनाना है मुझे, राइट? अब हिस्टोग्राम बनाने के लिए व्हाट डू यू नीड? देखो, हमें तो एक्स एक्सिस पे चाहिए वेरिएबल, वाई एक्सिस पे चाहिए, वो तो मुझे मिल चुके हैं। कॉन्टिन्यूस चाहिए डेटा, इज द डेटा कॉन्टिन्यूस? यस। अब उसके बाद क्लास विड्थ सेम है, यस, क्लास विड्थ भी सेम है सब में। वंडरफुल, मेरे को कुछ भी नहीं करना यार, डायरेक्टली बना दो, मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है। दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस फॉर यू। वेट इन केजीज वुड बी ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस पे आपने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लेने हैं। स्केल एक्स एक्सिस पे 1 यूनिट किसके बराबर है? 5 kg। ठीक है, केजीज में दिया हुआ है, इसलिए मैंने रोक के रखा था। वाई एक्सिस पे 1 यूनिट इज इक्वल टू 2 स्टूडेंट्स। ये लिखना जरूरी था। किंक लगाना इज एब्सोल्युटली नेसेसरी ओवर हियर। आई थिंक मैंने ये लाइंस इसलिए लगाई हैं सो दैट आपको दिख जाए कि मैंने मार्क कहां किया है। एक्चुअली यू हैव टू डू दिस ऑन अ ग्राफ पेपर, राइट? नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 30, फैक्टराइज। क्यूबिक इक्वेशन है, फैक्टराइज कैसे करें? हमें तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी आती है यार, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगाते हैं, हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है यार। अब क्यूबिक को कैसे सॉल्व करें? वी नो ओनली वन मेथड, दैट इज थ्योरम। सो फैक्टर थ्योरम का यूज करेंगे। पॉलिनोमियल इन x इज गिवन बाय x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, राइट? अब पॉलिनोमियल इन x मुझे दिया हुआ है, व्हाट शुड आई डू? सबसे पहले आई हैव टू फाइंड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, वहीं से मैं फैक्टर निकालूंगा। सो जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल के लिए मैं फर्स्ट ट्राई करता हूं, x की जगह 1 रखते हैं। 1 का क्यूब इज 1 माइनस 6 प्लस 11 माइनस 6, so प्लस 12 माइनस 12 विच इज 0। वाओ, मेरे को पहले पे ही मिल गया। 1 इज द जीरो ऑफ polynomial p of x, so x minus 1 is a factor। x minus 1 मुझे फैक्टर भी मिल गया। What would be the second step? I have to use prime factorization. No, not prime factorization, long division. So sorry about that. So this would become x cube minus 6x square plus 11x minus 6. डिवाइड करेंगे इसको x minus 1 से। What should I choose? x को किससे मल्टीप्लाई करूंगी x क्यूब बन जाए? Of course x square से। So this will become x cube, इस 1 को भी करना पड़ेगा, so minus x square। So what should I do? Subtract, sign would change, subtract, sign would change, minus 5x square plus 11x 6। Now इससे मल्टीप्लाई करें माइनस 5x से, सो यहां पे बन जाएगा माइनस 5x स्क्वायर एंड माइनस इंटू माइनस प्लस 5x, सो दिस गोज ऑफ एंड यहां पे आ जाएगा मेरे पास 11 माइनस 5 दैट इज 6x माइनस 6। इससे मल्टीप्लाई करूं प्लस 6 से, सो 6x माइनस 6 बन जाएगा। So of course you have to subtract, so sign would change, remainder becomes 0। So now मेरे पास जो
पॉलिनोमियल था वो चेंज हो गया। अब मेरे पास पॉलिनोमियल क्या बन गया, x माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5x+6। अभी इसके पूरे फैक्टर्स नहीं बने हैं, इट्स क्यूबिक, आई नीड 3 फैक्टर्स। सो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व कर देते हैं। दो नंबर सोचने हैं जिनको मैं ऐड करूं तो -5 बनना चाहिए। उन्हीं दोनों नंबर्स को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो आंसर शुड बी 6। कौन से ऐसे दो नंबर्स होंगे, 2 और 3। 6 तो बन गया, यहां पे भी 2 और 3। 5 बन गया, नो यहां तो -5 आ रहा है तो माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, सो x माइनस वन गोज हेयर, यहां पे एक्स स्क्वायर -2x -3x+6, x माइनस वन यहां पे। सो व्हाट शुड आई डू, आई हैव टू टेक कॉमन, x ही कॉमन आएगा, x -2, यहां पे -3 कॉमन आएगा, x -2। सो x -1, x -2 and x minus, that's it, it's done। आपके पास 3 फैक्टर्स बन गए हैं, फुल 3 मार्क्स इन योर बैक। इसका एक और पार्ट भी था, काफी बच्चों ने ये अटेम्प्ट किया होगा, दिखते ही दिख रहा था, a क्यूब माइनस b क्यूब। देयर इज द फास्टर मेथड एज वेल, मैं ये भी तो लगा सकता हूं, a माइनस बी होल क्यूब खोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को सिंप्लीफाई करना है, मेरे को फैक्टर्स नहीं बनाने। सो a क्यूब माइनस b क्यूब इज फैक्टराइजेशन, यहां पे फैक्टर्स थोड़ा ना बनाने हैं। सो a माइनस बी होल क्यूब क्या होगा, मेरे को सिंप्लीफाई करना है, सो आई हैव टू ओपन इट अप, a क्यूब -3a² b प्लस 3ab² प्लस ना -b³ सो अब मैं दूसरा ये यूज करूंगा, a प्लस बी होल क्यूब, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस, सिंप्लीफाई करना था गाइस। ऑफ कोर्स आप फैक्टर वाला यूज करके फिर उसको वापस मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो आंसर, नॉट द राइट वे टू डू इट। अब मैं यहां पे ये फॉर्मूला लगा देता हूं, सो a माइनस बी होल क्यूब, सो सबसे पहले a³ 2x का क्यूब माइनस 3 2x का स्क्वायर इंटू 5y प्लस 3 2x और 5y का क्या बन गया मेरे पास स्क्वायर माइनस 5y का क्यूब। अब माइनस बाहर है, मींस ब्रैकेट वुड बी देयर, a³ 2x का क्यूब प्लस 3 इंटू 2x का स्क्वायर इंटू 5y प्लस 3 इंटू 2x 5y का स्क्वायर प्लस 5y का, सो 2x का क्यूब विल गिव यू 8x³, और यहां पे माइनस, यहां पे बनेगा 4 4 5 20 20 इंटू 3 विल गिव मी 60 x² y। ऐसे ही सेम 25 टू 50 इंटू 3 150 x y² माइनस 125 y³। अब सारे के सारे साइन साथ में मैं चेंज कर दूंगा, माइनस 8x³ माइनस 60 x² y माइनस 150 xy² माइनस 125। तो 8x³ माइनस 8x³ गेट्स कैंसल, 150 पॉजिटिव में 150 नेगेटिव में, सो ये मैं कंबाइन कर सकता हूं, माइनस 120 x² y, और इसको भी मैं कंबाइन कर सकता हूं, माइनस 250 y³। फाइनल आंसर। नेक्स्ट वन, the marks obtained by 40 students in class 9th examination are given below. Present the data in the form of frequency distribution using class size. One of such class size is given as this. So, सबसे पहले मुझे lowest observation निकालनी पड़ेगी, that is 1। फिर मुझे highest observation निकालनी पड़ेगी, that is 24। lowest भी निकाल लिया मैंने, highest भी निकाल लिया।
सो मेरे पास रेंज तो आई गई, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट विल गिव यू 23। नाउ मैंने आपके लिए ऑलरेडी बना के रखा है क्लास इंटरवल 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20, 20 to 25, tally marks and frequency, just count them out. Not a difficult task to do that. सेक्शन डी पे चलते हैं। अब 4 क्वेश्चंस हैं, 5 मार्क्स ईच। लेट R1 and R2 be the remainders of the polynomial this and this when divided by this and this respectively, and उसके बाद एक इक्वेशन उन्होंने दे दी to find the value of a। मेरे पास f of x है ऑलरेडी, सो ये क्या आ गया, 4x का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12ax माइनस 5। इसको मैंने डिवाइड किया x माइनस 1 से, मेरे को रिमाइंडर चाहिए विच इज R1। सो मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा, f of 1 लगा के, f of 1 would give you 4 plus 3 plus 12a plus x की जगह 1 पुट करते जाओ, minus 5 is equal to 1। Let's write it properly। so ये क्या बन जाएगा, यहां पे बना 7, 7 minus 5 will give you 2, right, plus 12a which is equal to R1, right। अब आया मेरे पास g of x, ऑलरेडी दिया हुआ है 2x क्यूब ax स्क्वायर माइनस 6x, इसको डिवाइड किया मैंने x माइनस 2 से, और रिमाइंडर क्या आना चाहिए, R2। तो अगेन मैं रिमाइंडर थ्योरम लगाऊंगा, g of 2 लगा के, g of 2, अब 2 का क्यूब इंटू 2 विल गिव यू 16 प्लस 2 का स्क्वायर 4a, यहां पे फिर से 2, 2 6 12 बट माइनस 12 माइनस 2 इज इक्वल टू रिमाइंडर 2, ठीक है। सो 16 माइनस 12 4, 4 माइनस 2 इज 2 प्लस 4a विल गिव यू, आपके पास R1 आ चुका है, आपके पास R2 आ चुका है, और R1 और R2 रिलेटेड आपके पास एक इक्वेशन भी है, 3R1 प्लस R2 माइनस 28 which is equal to 0, right। so R1 की वैल्यू 2 प्लस 12a, 3 इंटू 2 प्लस 12a दिया हुआ है, R2 की वैल्यू 2 प्लस 4a दिया हुआ है, माइनस 28 is equal to 0। so 3 2s are 6, 12 3s are 36a plus 2 plus 4a minus 28 is equal to 0। 36 plus 4 48, ये 6 to 8 हो जाएगा, और माइनस 28 था तो माइनस 20 इज इक्वल टू 0। एक ही वैल्यू, ये पॉजिटिव हो जाएगा उधर जाके, और नीचे से मैं 40 से डिवाइड कर दूंगा, सो एक ही वैल्यू आ जाएगी 2, और 0.5 भी लिख सकते हो, विच एवर यू। दिस इज हाउ यू गेट फुल 5 मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह नेक्स्ट क्वेश्चन भी क्यों, इसका एक और पार्ट भी था, find the value of a and b so that x plus 1 and x minus 1 are factors of this। फैक्टर मतलब कि फैक्टर थ्योरम लगानी है यार, बिल्कुल सिंपल। सो पॉलिनोमियल इन x is already given to me, which is x raised power 4 plus ax cube plus 2x square minus 3x plus b, right। अब मेरे पास क्या आया, a की वैल्यू निकालनी है, x plus 1 is a factor, means I will use factor theorem, तो सीधा यूज करूंगा p of minus 1 is equal to minus 1 की पावर 4 क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, माइनस 1 का क्यूब नेगेटिव ही रहेगा, माइनस a प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, माइनस 1 का स्क्वायर इज पॉजिटिव, दैट वुड बी 2 minus 1 minus into minus plus 3 plus b, it is a factor, means this becomes 0। so मैं यहां से सीधा लिख सकता हूं, ये आ गया मेरे पास 6 minus a plus b is equal to 0।
and further I can do it. Minus a plus b is equal to 6. This is taken as equation number 1. अब इसके बाद बोला x minus 1 is a factor. Of course you have to write line, this is the factor, so मैं लिखूंगा p of 1. यहां पे भी आपको लाइन तो लिखनी ही पड़ेगी फैक्टर थ्योरम की. सो अब मैंने 1 पुट किया. ये तो बिल्कुल सिंपल हो जाएगा. 1 plus a plus 2 minus 3 plus b is equal to 0. तो ये तो 0 ही बन गया. a plus b किसके बराबर आ गया? 0 के. Wonderful. So ये आ गई मेरे पास equation number 2. Now this needs to be solved. Let's go with it. Minus a plus b is equal to minus 6 and a plus b is equal to 0. Now what to do? Them up. ये तो कैंसिल हो जाएगा. ऐड किया so 2b is equal to minus 6. b की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, that is minus 3. So a plus b is equal to 0. ये मेरे पास b की वैल्यू है, पुट कर देते हैं. a minus 3 is equal to 0. What would be the value of a? This will be even simpler than that. Next one. In the figure, PQ is parallel to RS. Okay, ये पैरेलल दिया हुआ है. ये मेरे पास एंगल 135 दिया हुआ है. This angle is 40 degrees. Now, MY को ये वाला एंगल चाहिए. So, सबसे पहले you have to do construction. कंस्ट्रक्शन के अंदर आपको लिखना पड़ेगा. कंस्ट्रक्शन मैं लाइन बनाता हूं. लाइन L is constructed parallel to, right? So यहां से मैं PQ is parallel to RS given था, तो मैं यहां से ये भी लिख सकता हूं L is parallel to RS, right? So अब मैं सबसे पहले यूज करूंगा L. इसको L लिख लेते हैं. L is parallel to PQ. इसका यूज करेंगे, राइट? सो मैं इसको ले लेता हूं 1 और इस एंगल को ले लेता हूं 2. एंगल 1 प्लस एंगल 2 is equal to 180. Angles on the same side of transversal, their sum is 180. So आपको ये लिखना पड़ेगा. Angle 1 is already given as 135. You can get angle 2 easily. So angle 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? That would be 45. Right? अब next, मेरे पास L is parallel to Q दिया हुआ है. मेरे पास L is parallel to RS भी तो है. अगर L is parallel to RS, I can say I can take this as angle 3 and this as angle 4. Angle 3 is equal to angle 4. अब आप कहोगे क्यों? Alternate interior angles, guys. Right? So, angle 3 already given as 40. लो, मेरे पास angle 4 की भी वैल्यू आ गई. Again a simple task. एक ये मिला, एक ये मिला. Now I need to find angle X and Y. Oh, यहां पे जगह नहीं है, तो यहां मार्क कर लेते हैं. Angle X M Y कैसे आएगा? एंगल 2 प्लस एंगल 3 से ही आएगा. एंगल 2 प्लस एंगल 4 से आएगा. एंगल 2 की वैल्यू इट इज ऑलरेडी गिवन एज 45 डिग्रीज. एंगल 4 की वैल्यू दैट इज गिवन एज 40 डिग्रीज. सो टोटल इज 5 डिग्रीज. एंगल X M. फाइनल आंसर. नेक्स्ट वन. Prove that angle subtended by the arc at the center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. Wonderful. उसके बाद use this theorem to finally give me this answer, right? So, अब यार हमारे को 3 proofs कराए हैं स्कूल में. So, I will do all those 3 and mark. ये रहे मेरे 3 proofs. First time, I'm taking this center. ये मेरे पास आ गया AB. So, ये मैंने ले लिया C. सेंटर आ गया O. Now, I have to prove, क्या प्रूव करना है? AOB is equal to twice that of angle ACB. Right? So, मैं एक काम करूंगा, कंस्ट्रक्शन करेंगे.
I can solve this very easily. Angle 1, angle 2, angle 3. Angle 1 plus 2 angle 3 के बराबर होगा. Angle 4, angle 5, 6. ठीक है. Now same thing can be done this as the center O, ये A, ये B. So यहां पे भी हम ये सेम चीज लगा सकते हैं. This is C. Exactly same way में करेंगे. 1, 2, 3 के बराबर होगा. एक्सटीरियर एंगल आ रहा है यार. Angle 4, 5, 6 के बराबर. And the very last one, so मैं यहां पे भी तो ले सकता हूं on the minor. ठीक है. सेंटर से ज्वाइन करेंगे. ठीक है. अब सेम वे, दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C, दिस इज O. फिर से 1, 2, 3 के बराबर होगा. 4, 5 इसके बराबर. राइट. इन ऑल ऑफ देम मैं एक ही सॉल्यूशन लिखूंगा. सिंपल लिख सकते हैं. इन ट्राइंगल AOC, आप तीनों को चेक करो. ट्राइंगल AOC, यहां पे ट्राइंगल AOC, यहां पे ट्राइंगल AOC, यहां पे ट्राइंगल AOC. एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. कौन सी प्रॉपर्टी लगाई? एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3. एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी. ट्राइंगल AOC को ध्यान से देखो. AO and OC आर इक्वल बिकॉज ऑफ रेडियस. यहां पे भी देख सकते हो, यहां पे भी देख सकते हो. AOC यहां पे भी देख सकते हो. ठीक है. सो मैं कह सकता हूं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. राइट. सो मैं यहां पे, मेरे को चाहिए कौन सा? मेरे को चाहिए एंगल 2. सो मैं एंगल 1 को एंगल 2 के बराबर लिखूंगा. यहां पे एंगल 2 लिखा, विच इज एंगल 3. So 2 times angle 2 is equal to angle. This would be my equation 1 because triangle AOC is isosceles. Right? So same way I can use in triangle BOC, BOC, BOC. Same चीज triangle BOC के अंदर भी हम यूज कर सकते हैं. Angle 4 plus angle 5 is equal to angle 6. Exterior angle property. And same way I can say यहां पे radiuses, यहां पे radiuses and यहां पे radiuses. So मेरे को 5 चाहिए. 4 की जगह मैं 5 रखूंगा. Angle 5 plus angle 5 is equal to angle 6. Q BOC isosceles. A simple task. 2 times angle 5 is equal to angle 6. But the problem is not yet done. इन दोनों का यूज करके I need to add it up. 2 times angle 2 plus 2 times angle 5 is equal to angle 3 plus angle 6. So 2 common. Angle 2 plus angle 5 will become angle AOC and angle 3 plus angle 6 AOB. बिल्कुल सिंपल. 4 मार्क्स डन. ठीक है. आप एक ही प्रूफ लिख सकते हो. अगर आपको स्कूल में बोला नहीं चीज सेम है बट यू हैव टू राइट 3 डिफरेंट प्रूफ्स, सो प्लीज राइट 3 डिफरेंट प्रूफ्स. राइट. नेक्स्ट, इसके बाद इस पे एक छोटा सा क्वेश्चन भी था. यूजिंग थ्योरम फाइंड ADC, आई नीड टू फाइंड दिस एंगल. ये कैसे निकलेगा? कोर्स आई नो. अब तो मैं यूज कर सकता हूं. AOC is equal to 2 times angle ADC. Right? I can use this. मेरे पास AOC already है. 60 plus 30, that is D. So 2 times angle ADC. I can write angle ADC as 45 degrees. चलो, 45 degrees done. Question number 35 पे चलते. अब ये क्वेश्चन NCERT बुक का है, सो प्रॉपरली करना आना चाहिए. 27 solid iron spheres, each of radius r and surface area s, are melted to form a sphere with surface area s1. Find radius r dash and of the new sphere and ratio of s to s dash.
मेरे पास छोटे छोटे स्फीयर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे कितने थे मेरे पास 27 और मेरे को एक बड़ा स्फीयर बनाना था जिसका रेडियस क्या होता आर डैश इनके रेडियस थे। अब आप मेरे को बताओ मैंने 27 स्फीयर्स लिए उनको मेल्ट किया और एक बड़ा स्फीयर बनाया कुछ कांस्टेंट रहेगा यस वॉल्यूम वुड रिमेन कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ स्मॉल स्फीयर्स वो भी 27 सबको मेल्ट किया इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ लार्ज स्फीयर सो 27 तो वैसे ही रहा 4/3 पाई आर क्यूब आर स्मॉल आर ऑफ कोर्स सो यहां पे आएगा 4/3 पाई आर डैश का क्यूब पाई कैंसिल हो सकता है 4/3 कैंसिल ये ऐसे कैंसिल मत करना डिनोमिनेटर में ले जाके कैंसिल करना ठीक है सो यहां पे बन जाएगा 27 आर क्यूब आई कैन राइट दैट एज 3 आर का होल क्यूब दिस इज इक्वल टू आर डैश का सो आर डैश की वैल्यू मेरे पास आ गई पार्ट 1 is complete. Now I need to find the ratio of S and S dash. S is surface area of the sphere, right? So S by S dash. S small का हुआ और S dash large sphere का, right? और कुछ भी नहीं है. So surface area क्या होता है? 4 pi r square. और यहां पे क्या आएगा? 4 pi r dash का स्क्वायर. 4 pi तो कैंसिल हो गया. दिस इज आर स्क्वायर. मेरे को रेशियो निकालनी है. आर डैश के बजाय मैंने 3r का यूज किया. सो आर स्क्वायर बाय 9 आर स्क्वायर. सो रेशियो बिकम्स आपका सेकेंड पार्ट इज ऑल्सो. नाउ लेट्स मूव अहेड. अब इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी था, राइट? सो लास्ट क्वेश्चन 5 मार्क्स मिल रहे हैं, ले लो. Along a path, 100 conical pillars are constructed. Conical pillars हैं. Each pillar with base area दिया हुआ है. Height मुझे दी हुई है. Cost of painting these pillars at the rate of rupees 120 per square centimeter. A simple target, right? अब मेरे पास कितने हैं? 100 pillars हैं, but conical हैं, ध्यान से. बेस एरिया मुझे दिया हुआ है. बेस एरिया इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. हाइट मुझे दी हुई है 24 सेंटीमीटर्स, राइट? नाउ कॉस्ट ऑफ पेंटिंग निकालने के लिए ऑफ कोर्स मैं बेस पे तो पेंट नहीं करूंगा, मैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया पे पेंट करूंगा. सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ पिलर क्या होता है? आई आर एल. रेडियस मेरे पास नहीं है, एल नहीं है. मेरे पास तो बेस एरिया एंड हाइट है. हाइट आई यहां पे, दिस इज राइट. हाइट दी हुई है यार. बेस एरिया भी तो दिया हुआ है. बेस एरिया इज नथिंग बट अ सर्कल. सर्कल का एरिया क्या होता है? आई आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 154. 22/7 into r square is equal to 154. So r square is equal to 154 into 7 by 22. So 22 ones are 22 7 times. So r की वैल्यू आ गई मेरे पास 7 सेंटीमीटर्स. ठीक है. अब r एक बार ही मेरे पास आ गया 7 सेंटीमीटर्स. नाउ ये मेरे पास आ चुका है 7. दिस इज r. नाउ टेल मी क्या कर सकते हैं? कोर्स पाइथागोरस थ्योरम लगानी पड़ेगी. एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. अब एल स्क्वायर दैट इज स्लांट हाइट विच इज गिवन बाय दिस. आर इज 7 का स्क्वायर, एच इज 24 का स्क्वायर. सो एल क्या आ जाएगा? 49 प्लस 576. सो एल की वैल्यू आ गई 625. सॉरी, एल स्क्वायर की वैल्यू आ गई 625. सो एल वुड बी 25 सेंटीमीटर्स. छोटे पिलर्स हैं, छोटे छोटे पिलर्स कंस्ट्रक्ट करे हमने, सेंटीमीटर्स में दिया हुआ. हाउ इज दैट नेसेसरी फॉर यू? बिल्कुल ठीक है, राइट? अब इसके बाद क्या कहा? एल भी दे दिया.
means curved surface area I know, pi RL. मेरे पास R भी है, L भी है. pi is 22/7, R is 7, L 25 दिया हुआ था. So 22 into 25. So 25, 10 to 50, 20, 500. तो 550 बिल्कुल सिंपल दिख रहा था. कर्व्ड सरफेस एरिया 550 आ गया. अब मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया एक का नहीं चाहिए, मेरे को कर्व्ड सरफेस एरिया 100 के चाहिए. 100 पिलर्स है भाई. 550 into 100 will give you 55,000. कर्व्ड सरफेस एरिया फॉर 100 पिलर्स आ चुका है. I need to find the cost. Cost is nothing but curved surface area into rate. So curved surface area was given as 55,000 into rate was given as 120. Answer is 66 lakh. That's it. Now let's move on to सेक्शन ई. 4 मार्क्स. अब ये सारी की सारी क्या है हमारे पास? केस स्टडीज. ठीक है. सो अब केस स्टडीज पे ध्यान से देखो. केस स्टडी एक ऐसी चीज है जो आप जितना ध्यान से पढ़ोगे उतना इजीली आपके पास आंसर आ जाए. लोकेशन ऑफ हाउसेस दी हुई है F1, F2, F3, F4 एंड F5. मार्क भी है 5 फ्रेंड्स. अब S is exactly in the middle of F1 and F2 means F1S and F2S. यहां से मैं सीधा exactly in the middle से मैं सीधा लिख सकता हूं F1S is equal to F2S. School is in the middle. F3, F4 and F5 and the school are on the same line. Of course, same line. मेरे को straight line दी हुई है. F1 and F2 are equidistant from F3. F1 and F2 is equidistant from F3. Means मेरे को यहां से एक और चीज मिल गई. ये डबल लगा देते हैं यहां पे. F1, F3 is equal to F2, F3. ये सब कुछ गिवन है. ये भी गिवन है, ये भी गिवन है. Also, line segment joining F1, F4, F2, F5 are perpendiculars. ये perpendiculars भी दिए हुए हैं. Marked है. Using the above information, find the answer. Let's see. Name the type of triangle formed by joining F1, F2 and F3. Okay. F1, F2 and F3. बिल्कुल सिंपल. F1 F3 के बराबर और F2 F3. F1 F3 and F2 F3 दोनों अगर इक्वल दिए हुए हैं, so I can say triangle F1 F2 F3 is isosceles. A simple task. Next one. F3 F1 F2. Okay, पहले देखें तो सही. F3 F1 F2 ये वाला एंगल बड़े वाला. ठीक है. F3 F2 F1. F3 F2 F1 ये वाला एंगल. क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं? गिव रीजन. यस. क्यों? अभी तो प्रूव किया. F1 F2 F3 is isosceles. Yeah, that's simple. And the last one, prove F1S F4. क्या दिया? F1S F4. अच्छा, ये वाली ट्राइंगल की बात करी है. And F2S F5 okay are congruent. ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं. सो मेरे को क्या क्या पता है? मेरे को तो एक यहां से ये पता है F1S F2S के बराबर है. F1S F2S के बराबर है. ये मेरे को दिया हुआ है. ठीक है. ये तो गिवन था. ये मेरे को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. ठीक है. और क्या दिया हुआ है? एंगल नहीं, हाँ, F4 एंड एंगल F5. ये क्या है? राइट एंगल्स दिए हैं. ईच इक्वल टू 90 डिग्री. यहां पे लिख देते हैं. और कुछ दिया हुआ है. हाँ, ये वाला एंगल. इसको 1 ले लो, इसको 2 ले लो, या फिर F1S F4 F1S F4 is equal to F2S F5. क्यों? Vertically opposite angle. So I can easily say F1S F4 is congruent to triangle F2
S F5 using AAS. That's it. इसका एक और पार्ट भी था, F3S and F2, ना F1 F2, F3S, ओके, F3S एंड F1 F2 दोनों क्या हैं? परपेंडिकुलर. अब वो ट्राइंगल कैसी बन रही है? ऐसी बन रही है, राइट? उसने कहा कि भाई ये S था मेरा, ये F1 था, बार बार पीछे जाने से अच्छा यहां बना लेते हैं. सो उसने कहा कि ये दोनों ट्राइंगल्स में ये जो है ना F3S, मतलब कि ये परपेंडिकुलर होना चाहिए, मतलब कि मैं इसको एंगल 1 और इसको एंगल 2 ले लेता हूं, या वहां पे 1 एंड 2 यूज कर लिए थे तो एंगल 3 एंड एंगल 4 को 90 डिग्री प्रूव कर देते हैं. सो मैं इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देता हूं. ट्राइंगल F1S F3 एंड ट्राइंगल F2S F4 F2S F3, दोनों को अगर मैं कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दूं तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व. सो मेरे को ऑलरेडी पता है F1S और F2S, F1S एंड F2S दोनों इक्वल दिए हैं, गिवन था यार. और भी मुझे कुछ पता है, मुझे और क्या पता है? F1 F3 और F2 F3, ये भी गिवन दिया हुआ है. वंडरफुल. व्हाट एल्स? मेरे को F3S और F3 सॉरी S क्या दिया हुआ है? कॉमन दिया हुआ है, ये तो कॉमन है. तो आई कैन से F1S F3 एंड F2S F3, ये दोनों क्या हो गई? कॉन्ग्रुएंट यूजिंग SSS रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ये जैसे कॉमन हुआ मैं सीधा कह सकता हूं F3 एंड F4 दोनों क्या हो गए? इक्वल CPCT से. एंड मेरे को एक चीज तो पता ही है, F3 प्लस F4 लीनियर पेयर गाइस, 180 लीनियर पेयर बना दिया. सो मैं इसको F4 को F3 लिख लिया तो 2 टाइम्स एंगल 3 इज 180. सो एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री. हो गया प्रूफ. अगर एंगल 390 है तो मैं सीधा कह सकता हूं भाई F3S इज परपेंडिकुलर टू F1 F2. नेक्स्ट केस स्टडी पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 37, सेकंड केस स्टडी है. नाउ यू हैव टू रीड दिस. फूड पिरामिड की रिप्रेजेंटेशन दी हुई है एंड ये ट्राइंगल दी हुई है, उसके अंदर आपको 4 डिफरेंट पार्ट्स मिल जाएंगे: फैट्स, ऑयल, मिल्क, चीज, मिल्क वेजिटेबल्स एंड ब्रेड, सीरियल एंड पोटैटोस. Base 12 and the sides are 10 each already given. Find the semi-perimeter of the triangle. Semi-perimeter कैसे आएगा? Semi-perimeter is A plus B plus C by 2. हमें ऑलरेडी पता है. So now A कितना दिया हुआ है? 10, B 10, C 12. 10 plus 10 plus 12 by 2, which is nothing but 32 by 2, which is nothing but 16. Yeah, it was that simple, guys. Next, find the area of the food pyramid. Now, area निकालना है food pyramid का. Already you know S is 16. So now area is given by under root of S into S minus A, S minus B, S minus C, right? So S is given by 16. So S minus A, 16 minus 10 is already given as 6. And 16 minus 10, फिर 6, 16 minus 12, it is 4. Now, as you solve this, आप pairs बनाओ, count करो, it will be 48 centimeter square. Now, there is an or part of this question as well. The model of the food pyramid is to be decorated by 5 layers of jute thread placed one over another on its boundary. Boundary पे, जैसे ये boundary है बच्चे, so इसके ऊपर मैंने 5 layers चढ़ानी है. 5 layers. ठीक है. Cost of jute is given by this. So costing निकालने के लिए मुझे सबसे पहले लेंथ चाहिए, इनटू रेट लगा दूंगा, प्रॉब्लम सॉल्व. तो लेंथ ऑफ थ्रेड निकालने के लिए मेरे को 5
टाइम्स करना है उसको, इंटू पेरीमीटर होगा। सो 5 इंटू 32 होगा। 5 इंटू 32 मेरे पास लेंथ आ गई। कॉस्ट निकालने के लिए बिल्कुल सिंपल है, यहां मल्टीप्लीकेशन की कोई जरूरत नहीं है। 5 into 32. What was the rate given as? 50 paisa means 0.5 rupees, which is nothing but rupees. And part 3, find the length of the altitude of a triangle. एक triangle है मेरे पास, altitude मुझे निकालनी है, ठीक है, which is the height. इसका एरिया मुझे दिया हुआ है 330 centimeter square and the base is given as 11 centimeters. So, मैं सिंपल निकाल सकता हूं, एरिया क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। सो ये आ गया मेरे पास 330 विच इज इक्वल टू हाफ बेस, मेरे को दिया हुआ 11, हाइट मैं निकाल लेता हूं यहां से 330 इंटू 2 बाय 11, 11 3s are 33 which is h, 30 into 2 which is 60, of course, centimeter. Now move on to the last case study. अब ये तो और सिंपल थी। अब एक अम्यूजमेंट पार्क है, उसमें राइड्स, charges to enter the amusement park as follows: for first 1 hour it is 14 rupees and for the subsequent hours it is rupees 8 per hour. X is the number of hours you spend in the amusement park and paid rupees y in total. So answer the following question, write the linear equation. Come on, payment कैसे करूंगा? Y is equal to, for the first hour it was 14, for subsequent hours it was rupees 8. फर्स्ट आवर का आप पे कर चुके हो, मींस 1 hour has to be subtracted. So y is equal to 14 plus 8x minus 8. So y is equal to 8x 6. आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, अगर टीचर ने बोला है आप यहां पे भी छोड़ सकते हो, विच इज इक्वली करेक्ट। मैं तो यहीं छोड़ दूंगा, बट अगर आपको स्कूल टीचर ने बोला है कि नहीं ऐसे छोड़ना है, तो आपको आंसर वैसे ही छोड़ना है, राइट? So now plot the graph. Okay. So for plotting the graph, ठीक है, what do I need? मेरे को coordinates चाहिए होंगे, right? I need 2. If your teacher says 3, need 3. So now मैंने x की जगह 0 पुट किया, y क्या आ गया 6. क्यों? मेरे पास इक्वेशन क्या है, y is equal to 8x plus 6 है, right? Now x की जगह मैंने 1 पुट कर दिया, y कितना आ गया 14. x की जगह 2 पुट कर दिया, y आ गया 22. बट y की जगह अच्छा पॉइंट निकालने के लिए कि वो y एक्सिस ना x एक्सिस पे कहां कट करेगा, मैं y को 0 कर सकता हूं। ऑलवेज डू दिस। y को जैसे ही 0 किया, आपके पास ये -3/4, आपको पता चल जाएगा कि कैसे जाएगी, ये कुछ ऐसे जाएगी, इतनी तेजी से बढ़ेगा। मेरे को तो इन दोनों पॉइंट से मतलब होता है कहां पे कट कर रहा है, कभी आंसर गलत ही नहीं होगा। दिस इज 6,0 एंड -3/4, या ठीक है। ऑफ कोर्स यू हैव टू मार्क दिस गाइस, प्रॉपर्ली अपना मार्क करके बनाओगे। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय द गिवन लाइन विद एक्स एक्सिस एंड वाई। लो एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल, ये वाली ट्राइंगल दिख रही है, मैं इनके मार्क कर देता हूं ए ओ। This triangle का area, it is a right angle triangle, so wonderful. Area would be equal to half base into height, right? So half base तो आ गया मेरे पास 3/4, height आ गई मेरे पास 6, so 2 3s are, answer is 9/4. अब यहां पे मेरे को कहीं पे भी सेंटीमीटर आवर्स कुछ भी नहीं दिया हुआ, सो मैं यूनिट स्क्वायर लिखूं। हमेशा ये ध्यान रखना, एरिया पूछा है तो ऑफ कोर्स यूनिट स्क्वायर होगा ही। इस क्वेश्चन का एक और पार्ट भी था, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल। हाइपोटेन्यूज ऑफ द ट्राइंगल मींस AB चाहिए मुझे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू AO स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, राइट? सो AB स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। So 9/16 plus 36 will give you 585/16. This is AB square. So finally you can write
the length of hypotenuse, which is nothing but 3 root 65 pi. So this completes your discussion of St. Anne's Convent School annual examination for mathematics for class 9th 2022-23. Thank you guys and have a great one.